Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. So my dear children, I am here again. You remember last time I had come? Yeah. What is the difference between then and now? What's the difference? Huh? Leg. Yes, my leg was in the. It was in the plaster, right? It was in this, na? This time I was with this now. What was that called? Astronaut. Now I'm not an astronaut. I'm just a normal person now. Huh? So last time we had this nice Alhamdulillah discussion with all of you children on the topic. What was the topic last time? How to be an outstanding student. How to be an outstanding. You want to be just a normal average student, or you want to be an outstanding student? So now let's define today's topic. Today we are going to talk about Ramadan. Now, can you design the topic? Can someone suggest a topic for today? I'm asking the audience to give the topic. Who can suggest a topic for today on lines of what we did last time? Last time it was how to be an outstanding student. Now we will discuss how to have a Ramadan. Outstanding Ramadan. Who said that? Yes, mashallah. What's your name? Adnan gave us very soft voice but very good suggestion. How to have a outstanding Ramadan, inshallah. See, my dear children, Ramadan is a very big opportunity. It's a very big opportunity for all of us to bring the best out of us. See, every one of us, we have a potential to be average. We have a potential to be below average. We have a potential to be above average. And we have the potential to be outstanding. So now this Ramadan, inshallah, our goal is to have a outstanding Ramadan. Best Ramadan. Best meaning, how old are you now? How old are you? 13. 13 years. Okay, so he's 13. So now he has seen, from the time he was a baby boy till now, he has seen how many Ramadans you've seen? How many Ramadans you've seen? 13 Ramadans, or maybe 13 Ramadans maybe, because lunar year is smaller than the solar year, isn't it? So now, out of 13 Ramadans, many Ramadans were as a baby, then there was as a small boy, and now he's mashallah, a more mature boy, mashallah. So my dear children, I'm giving you a goal in your life so far. This should be your best Ramadan now, this one, best so far. And every year you will try to make the next Ramadan better than all the previous Ramadans. And this is a month of great opportunity. So let's start inshallah. As we heard the beautiful recitation from the brother, mashallah, how beautifully he read the Quran. What was his name? Where's he? Hassan, right? Hassan Abdullah, where's he? Where's he gone? Okay, so now Hassan Abdullah, he read this verse so nicely, and we will read this verse, Suratul Baqarah, Surah 2, verse 183. Tell me one thing, we should continue in English, right? Yeah. What's the plan? Can somebody find out and suggest? Okay. The verse of the Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, kutiba alaykumus siyam, fasting has been prescribed upon you. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, as it was prescribed on those before you. La'allakum tattaqun, so that you may fear Allah. So my dear children, अभी हमारा गोल क्या है? कैसी रमजान चाहिए हमें? आउटस्टैंडिंग रमजान. तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा मुकर्रर किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसा तुमसे पहले वालों पर किया गया था, मिन क़ब्लिकुम. क्यों? गोल क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो. तकवा क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तकवा क्या है? तो तकवा का मतलब एक एहसास, अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से नेकियां करना,
अल्लाह के डर की वजह से गुनाह से रुकना। तो तकवा में एक्सेलरेटर भी है नेकियों में आगे बढ़ने वाला, और तकवा में ब्रेक भी है गुनाहों से रोकने वाला। तो हमारा वो टाइम आ गया है साल भर में जब हमारा एक्सेलरेटर अच्छा हो जाए, हमारा ब्रेक भी अच्छा हो जाए, गुनाहों से बचने वाला ब्रेक, नेकियों में आगे बढ़ने वाला एक्सेलरेटर। और एक बहुत अच्छी मिसाल जो हम देखते हैं स्कॉलर्स देते हैं, और वही मिसाल जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था जब उनसे पूछा गया कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा अगर तुम ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहां से दोनों तरफ से नुकीली कांटे वाली झाड़ियां हैं, तो अपने आप को कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? दोनों तरफ से पॉइंटेड थॉर्न्स है, कैसे जाओगे? नहीं जाओगे, संभाल के। क्यों? कपड़े, आपके कपड़े जो है नहीं तो खराब हो सकते हैं ना थॉर्न से, अपने आप को बचा के जाएंगे ना। तो यहां पर तकवा क्या है? अपने आप को बचा के जिंदगी के सफर से हम आगे बढ़े और हमारी असल मंजिल, जो हमारा असल गोल है जन्नत, वहां पहुंच जाए। यह है तकवा। और इस बारे में अभी हम ये देखते हैं क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है ना। देखो कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लाल लकुम तत्तकुन। कुरान की आयत में क्या है? लाल लकुम तत्तकुन। अब तकवा की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं लोग। व्हाट इज तकवा? तकवा का क्या फायदा है, ऐसे लोगों को पता नहीं अक्सर। तो देखो, जो चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना, वो चीज आदमी हासिल नहीं करता है, वो चीज की अहमियत नहीं समझता है जिस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो मैं एक शॉर्ट में आप लोगों के साथ लेना चाहता हूं कि तकवा की इंपॉर्टेंस क्या है। तकवा की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मैं मिसाल देता हूं, इसकी चॉकलेट रखा है और 100 रुपीज की नोट रखा है, और कहा लो इसमें से कौन सा चाहिए। तो बहुत छोटा बच्चा क्या सिलेक्ट करता है मालूम है? क्या सिलेक्ट करता है? चॉकलेट। लेकिन तुम लोग सबको देखकर मुझे मालूम है कि तुम्हारे सामने रखूंगा तो मेरे 100 रुपीज चले जाएंगे। क्यों? वो छोटा बच्चा 5 रुपीज की चॉकलेट क्यों ले रहा है? क्योंकि 100 रुपीज की नोट में कितनी चॉकलेट आती है अब तक उसको मालूम नहीं है। जिस दिन उसको पता चलेगा कि 100 रुपीज की नोट से कितनी चॉकलेट मिल सकती है, उस दिन वो उसको सिलेक्ट करेगा। करेक्ट? देखो, तकवा लाल लकुम तत्तकुन का महीना है, लेकिन तकवा की इंपॉर्टेंस होगी तो हम चूज करेंगे ना तकवा चाहिए। अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, तो हासिल भी नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो तकवा की इंपॉर्टेंस हम सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी कुछ आयतें आपको बताऊंगा। पहली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133, अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में कहा, उइद्दत लिल मुत्तकीन। जन्नत किसके लिए तैयार है? तकवे वालों के लिए। सी माय डियर ब्रदर्स, बच्चे, एवरीवन, बड़े छोटे सबके लिए दिस इज अ रिमाइंडर। जन्नत किसके लिए है? दिया हुआ है। जन्नत किसके लिए है? तकवे वालों के लिए तैयार है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको तो तकवा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या बोल रहे हैं वो? अगर बोलते हैं तकवा नहीं चाहिए मतलब जन्नत नहीं चाहिए, क्योंकि जन्नत तकवे वालों के लिए है। तो तकवा तो चाहिए, परहेजगारी, अल्लाह का डर, अल्लाह के डर की वजह से गुनाहों से बचना। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तुम लोगों के क्लासरूम में सीसीटीवी है, कैमरा नहीं है? हाँ, नहीं है। और फिर भी टीचर नहीं है, अगर कोई टीचर नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। टीचर है तो भी कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। यहां पे समझना क्या है? एहसास के अल्लाह ताला जिसने आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया, मुझे बनाया, मेरी एक एक बॉडी के सेल को बनाया, मेरे अंदर के डीएनए को बनाया। डीएनए होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में से कितनी इंफॉर्मेशन है? डीएनए में है ना जो इंफॉर्मेशन है, हमारी आईज का कलर, हमारी हाइट, बॉडी, सब चीज कहां से? डीएनए से आती है, ये कोड से। और डीएनए कोड को जब हम रीड कर रहे हैं तो कितना कोड इंफॉर्मेशन निकल रही है मालूम है? डीएनए जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल, उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए में कितनी इंफॉर्मेशन निकली? एक पेज, 2 पेज, 104 वॉल्यूम्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, एनसाइक्लोपीडिया लेवल के वॉल्यूम्स भर जाएंगे, उतनी इंफॉर्मेशन वो डीएनए में है।
इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। तो जो अल्लाह ताला डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन डाल सकता है, जो इतने बड़े यूनिवर्स को बना सकता है, क्या वो आपको मुझे नहीं देख सकता? हाँ, क्या वो हमें नहीं पकड़ सकता है? मतलब समझना चाहिए कि हम किसके बंदे हैं। हम किसके बंदे हैं बताओ? ये जो हाथ है, इधर आओ, ये जो हैंड्स है, तुम लोग सब देखो। हाँ, ये हैंड किसने बनाया? हमारे किसने बनाया? आपने बनाया? किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। अगर हम बनाए तो बोले मैं जो चाहूं करूं, लेकिन हमने नहीं बनाया। ये किसने? अल्लाह ताला ने बनाया। और आपने बताए थे कि मुझे 5 उंगलियां चाहिए, फिर मांगे बगैर दिया। अल्लाह ताला ने मांगे बगैर दिया, इतना अच्छा दिया। हाँ, तो बच्चे लोग ध्यान रखो बच्चों। हाँ, क्या ध्यान रखने का है? अल्लाह की दी हुई इस बॉडी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के कामों के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत लोग जीते हैं, तुम्हारे मेरे जैसे 800 करोड़ लोग इस जमीन पर रहते हैं। याद रखना है ये। बहुत सारे लोग जहन्नम के रास्ते पर हैं। हम लोगों को वो लोगों में से नहीं बनना है। हम लोगों को वो लोगों में से नहीं बनना है। हमें कहां जाना है? ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, जो तकवे वालों के लिए जन्नत तैयार है, हमें उसमें जाना है। मैं शॉर्ट में ले रहा हूं ताकि मेन टॉपिक पे फोकस रहूं। इस आयत में आता है सूरह हुजुरात की आयत नंबर 13, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सबसे इज्जत वाले अल्लाह के नजदीक वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरते हैं। इज्जत किसकी है? सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से जो डरते हैं ना, तकवे वाले हैं ना, सबसे ज्यादा तकवे वाले, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत है। किसकी इज्जत ज्यादा है? पैसे वालों की? अल्लाह के पास किसकी इज्जत ज्यादा है? ताकत वालों की? किसकी इज्जत ज्यादा है? पहचान वालों की? हाँ, पहचान वालों की। किसकी इज्जत ज्यादा है? बोलो, किसकी इज्जत सबसे ज्यादा है? तकवे वालों की। तुम्हें तकवा चाहिए? अल्लाह के पास, तुम्हारे पास तकवा है, अल्लाह के पास तुम्हारी इज्जत है। अल्लाह के पास आसमान और जमीन के मालिक के सामने इज्जत किसकी है? तकवे वालों की इज्जत है। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरे यूनुस सूरा 10 आयत नंबर 62-63, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो औलिया होते हैं उन पे ना खौफ होगा ना गम होगा। अल्लज़ीना आमनू, कौन है वो लोग? कुछ लोग बोलते हैं ये फला वली। भाई अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू, जो इनके पास ईमान है, व कानू यत्तकून, जिनके पास तकवा है। तो तकवा एक बहुत प्रेशियस चीज है और सीखने का महीना सामने है। मैं बातें क्यों कर रहा हूं अभी? लाल्लकुम तत्तकून का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़े ही दिनों में। तो मेरे डियर चिल्ड्रन, ये मौके को खोना नहीं है, क्योंकि यू गेट द चांस टू बी द वली ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह का वली बनने का चांस है। अच्छा, अल्लाह के वली तो बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। आम आदमी वली बन सकता है अल्लाह ताला का वली, या कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान होगा वली। हाँ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह जानता है दिल में किसके तकवा है। जिसके पास तकवा है वो अल्लाह का वली है। हाँ, ईमान वाला, तकवे वाला अल्लाह का वली है। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये मौके को खोना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं तकवे वाले लोगों को बहुत गरीबी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल। ये आयत पढ़ी, वो मैं यत्तकिल्लाह, जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सिचुएशन में फंस गए, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है? ऐसा हुआ है किसी के साथ? हुआ है? हाँ, कभी होता है ना, एग्जाम सर पे है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी क्या होगा? हाँ, कभी ऐसा होता है, पता नहीं कौन सी मुश्किल। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। अल्लाह रास्ता निकालने पे कादिर है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के सामने है, पीछे से आ रहा है फिरौन, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अल्लाह ने रास्ता निकाला। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। किसके लिए? जो तकवा इख्तियार करता है। व यरज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब, और वहां से रिस्क देता है, रिस्क जहां से सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिस्क की बात भी आ गई और रास्ता निकालने की बात भी आ गई। अल्लाह के पास इज्जत और ऑनर की बात भी आ गई। इज्जत अल्लाह के पास, आसमान और जमीन के मालिक के पास। क्या हम में से किसी की इज्जत अल्लाह की नजरों में हो सकती है? जी हाँ, आसमान और जमीन का मालिक है, लेकिन जर्रे जर्रे से वाकिफ है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े बेनिफिट सामने हैं
तो अब माय डियर चिल्ड्रन एक इरादा करो। क्या इरादा करो? क्या इरादा करो कि आपको तकवा चाहिए, तकवा चाहिए। अब अगला पॉइंट, तकवा हासिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स जो लोगों में है। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि क्या, सवाल के जवाब बताओ, क्या बगैर चाहे तकवा हासिल हो सकता है? यानी चाहता नहीं आदमी, फिर भी आ गया उसके अंदर तकवा, उसको चाहिए नहीं, आई डोंट वांट तकवा, लेकिन फिर भी आ गया, ऐसे आता है तकवा? यस या नो, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही जवाब कि तकवा ऐसे नहीं आता है। जैसे मान लो ये बकेट है, जोरदार बारिश हो रही है और बकेट उल्टी रखी हुई, अभी इसके अंदर पानी जमा होगा? कितनी भी बारिश हो जाए तो पानी जमा नहीं होगा। मतलब क्या? बहुत से लोग लाल लकुम तत्तकून के महीने में एंटर होते हैं, लेकिन बोलते हैं नो नो नो, तकवा नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए तो नहीं मिलने वाला है। अगर रियली नहीं चाहिए ना दिल से बच्चे लोग, तो ऐसे नहीं आने वाला है कि ठूस ठूस के उसके दिल में तकवा आ जाए, ऐसे नहीं आता है तकवा। डू यू वांट तकवा? क्या तुम्हें चाहिए अल्लाह के नजदीक तुम्हारी इज्जत हो? क्या तुम्हें चाहिए अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकाले? क्या तुम्हें चाहिए अल्लाह तुम्हें रिस्क दे? क्या तुम्हें चाहिए अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? क्या तुम्हें चाहिए वो इद्दतुल मुत्तकीन वाली जगह जहां पे एंट्री है तकवे वालों के लिए, हाँ, जन्नत? क्या चाहिए? हमेशा की खुशी चाहिए, रियल खुशी चाहिए, जो दिल चाहेगा वो सब कुछ मिलेगा चाहिए, नबियों की कंपनी, प्रॉफिट्स की कंपनी चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो थोड़ी मिलने वाला है। सो माय डियर चिल्ड्रन, देखो रमजान का महीना, रोजा क्यों है? तकवा सीखने के लिए। मुस्लिम्स का आमतौर पे तकवे का लेवल हाई है कि लो है आजकल? तुम लोगों को मालूम है बाहर की दुनिया की, यहां पे ही है। हाँ, देखो मुस्लिम माशरा जो है ना, बहुत सैडली, क्योंकि कैसा होता है, हम लोगों को बस मिल गई, एक बहुत कीमती चीज मिल गई, डायमंड्स रास्ते में पड़े हुए हैं और बच्चे ने उठा लिया, बोला कि पेबल्स है, उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को ऐसे बहुत कीमती चीज मिल गई इस्लाम, तो उसकी वैल्यू जो है ना, वैल्यू जो फर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम के दिलों में थी, बिलाल के दिल में थी, जब रेत पे उनको हॉट रेत पे लिटा दिया गया और कहा गया कि अभी अल्लाह को छोड़ दो, तौहीद को छोड़ दो, वन गॉड, बोले नहीं अहद, उनके दिल में जितनी कीमत थी ऐसी कीमत आज के मुसलमान में नहीं होती है। तो तकवा सीखने का महीना आता है और जाता है, आता है और जाता है। अगर बकेट उल्टी है तो फिर नहीं मिलने वाला। सबकी बात तो करें, हमारी बात करना चाहिए। बहुत अच्छा, सबके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं माय डियर चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कौन है सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए? कौन है? बोलो, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तुम्हारे लिए कौन सा पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है अभी दुनिया में? सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? कोई और जवाब? किसने बोला? फिर से बोलो, जोर से बोलो। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो। कु अनफुसकुम, बचा लो अपने आप को। हाँ, अलैकुम अनफुसकुम कुरान में दिया है, तुम पर लाजिम अपने आप को बचाओ। माय डियर चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो। लेकिन सब लोग, तुम लोग जन्नत जाओ, ऐसे चलेगा? ऐसे जाएंगे लोग जन्नत? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सो माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, बकेट उल्टी रख के जाएंगे रमजान में कि सीधी करेंगे? बारिश होने वाली, अल्लाह की रहमतों की बारिश, लाल लकुम तत्तकून का महीना है। लेकिन अगर तुम्हें तकवा नहीं चाहिए ना, रमजान आएगी जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डोंट डू दैट विथ योरसेल्फ। इतना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है तुम्हारे लिए, डोंट मिस दिस चांस। मिस करेंगे चांस को? मिस करेंगे नहीं करेंगे? इतना डाउटफुल, मिस करेंगे चांस, इतना अच्छा चांस मिस करेंगे? हाँ, तो हमेशा हाँ नहीं बोलना होता है, कभी ना भी बोलना होता है। हाँ, ओके, तो वी विल नॉट मिस दिस चांस, इस मौके को नहीं मिस करेंगे। तो अभी हमारा पर्पस ऑफ फास्टिंग क्या है? लाल लकुम तत्तकून। मेरे बच्चों, आपको है ना वही चीज मिलेगी जो आप रियली चाहते हो,
वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जिस चीज की वो खुद कोशिश करेगा। जो तुम चाहते नहीं हो तो मिलने वाला भी नहीं है। ये वो महीना सामने है। हाँ, और हम क्या देखते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वमन यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, जो पाकी चाहता है अल्लाह उसे पाक करता है। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, जो गनी बनना चाहता है अल्लाह उसे गनी कर देगा। वमन यतसब्बरा युसब्बिरुल्लाह, जो सब्र चाहता है अल्लाह उसे सब्र अता करेगा। मतलब किसको सब्र, कौन सब्र वाला बन सकता है? जो चाहता है। देखो, एक होता है ना गोल, एक होता है आइडियल हमारी नजरों में, आई वांट टू बी दिस। तो मैं आप सबको एक ख्वाब देना चाहता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर होता है ना, तुम लोगों ने देखियो बाल की ऐड, देखियो बाल की बिफोर एंड आफ्टर वाली, क्या कि कोई बिना बाल वाला है बिफोर, उसके बाद बताते हैं आफ्टर। तो अभी बिफोर रमजान के आप हो, फोटो डाल लो, लगा लो अपनी, लगाए। अभी आफ्टर रमजान का एक बहुत तकवा वाला वर्जन, तकवे वाला वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उसकी इमेजिनरी फोटो इमेजिन करो कि वो कुछ ऐसा नहीं कि सी उग जाएंगे तकवा आने से। हाँ, लेकिन बहुत कीमती चीज है माय डियर चिल्ड्रन, हासिल करना है वो, और वो नहीं मिलने वाला जब तक आप खुद दिली तौर पे नहीं चाहोगे। ओके, इंशाल्लाह। हाँ, यू आर देयर, ओपन फॉर इट। अच्छा, ये आयत देखिए, वयहदी इलैहि मन अनाब। चलो मैं सवाल पूछता हूं, देखते कौन सा बच्चा जवाब देगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटते हैं, जो अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। तो कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी। अब इसका जवाब दो आप लोग जवाब दो। कुछ लोग बोलते हैं, बोले हाँ अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी। पाने की कोशिश किया कि नहीं किया? और बताओ जी, और बताओ, पीछे से बताओ। चलो आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। यस बच्चे बताओ, पीछे वाली बच्चियां बोलेंगी, बोले अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। हाँ, यस बोलो, तो बताओ। हाँ, जोर से बोलो, क्या बोले? अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? लेकिन वो बोले अल्लाह ने नहीं दिया क्योंकि अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। हम अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो अल्लाह हमें भी देगा हिदायत। हिदायत ऐसे नहीं मिलती है, हिदायत बहुत कीमती चीज है। गाइडेंस किसे अल्लाह हिदायत देता है? जो अल्लाह की तरफ पलटता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अभी है ना, दिल को ओपन करो। मुझे इसमें तकवा चाहिए। ये रमजान में जो लेवल है आपका, उससे हायर लेवल पे इंशाल्लाह पहुंचने का आपका गोल है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग है ना क्या करते हैं, जैसे आप ये चार्ट से समझिए कि रमजान आई, जन्नत की तरफ जा रहे हैं, रमजान गई, जहन्नम की तरफ यू टर्न। तो आप ये हदीस देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिन उतका, कि इफ्तार का वक्त होता है ना, तो ऐसे बहुत से लोग आजाद होते हैं, आजाद। हाँ, कहां से? जो जहन्नम जाने वाले थे, वो लोग जहन्नम की आग से आजाद होते हैं, यानी कि वो जिंदगी का डायरेक्शन अपना चेंज कर देते हैं। वज़ालिका फी कुल्ली लैला, और ये रोज रात होता है। माय डियर चिल्ड्रन, मालूम है रोज रमजान में ऐसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मैं तुम लोगों से सवाल क्या पूछ रहा हूं? सवाल मेरा यह है कि ये आदमी जो रमजान में जन्नत की तरफ, फिर बाद में जहन्नम की तरफ, टेम्पररी तकवा, तो क्या ये जहन्नम की आग से आजाद हुआ ऐसा लग रहा है? हाँ, तो माय डियर चिल्ड्रन, इसमें इरादा ये होना चाहिए हमारा कि वी विल डू इट परमानेंटली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। हाँ, हम लोगों का पूरा इरादा हो कि मैं रब्बुल आलमीन के लिए मैं नेकी का रास्ता लेना चाहता हूं, जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं। ऐसा मत करना। ये क्या है? क्या है ये? सिंबॉलिकली क्या है ये? पानी फेंक रहे हैं। ओके, और सोचो, वो था ना पिछली फोटो में क्या था? बकेट उल्टी थी। ये बकेट उल्टी थी क्या? इसमें आया पानी, लेकिन रमजान गई वैसे ही खत्म कर देते हैं अपने हाथ से।
ऐसा नहीं करना है। सी बच्चे लोग याद रखो, दुनिया में टेम्पररी इंजॉयमेंट के लिए है, करते हैं लोग, लेकिन रियलिटी तो सामने आ जाएगी ना, एक दिन रियलिटी सामने होगी। समझदार इंसान कौन है? ये करने वाला समझदार है? बहुत बड़ा फूल है कि तुमने पानी तो हासिल किए फिर तुमने वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो ये देखने के बाद अब आइए हम लोग सब इसमें आगे बढ़ते हैं और ये चीज की तरफ कि तकवा कहाँ होता है? दिल में। तकवा कहाँ है? तकवा हा होना व इशारा इला सदरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तकवा यहाँ है और दिल की तरफ इशारा किया। ये जो तकवा जो है दिल के अंदर, बाहर के कुछ काम जो होते हैं ना, अच्छे अच्छे काम, उससे तकवा बढ़ता है और गुनाह के काम से तकवा कम होता है। मतलब तकवा दिल में है, लेकिन जो बाहर के कामों का असर हमारे दिल तक जाता है, और जो गुनाह के काम करेंगे तो तकवे का लेवल कम होता है। हाँ, और क्या है मेरे ब्रदर्स और ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई दीनी भाई और बहन तो है ही ना सब लोग, कि दीन का इल्म हासिल करते हैं उससे तकवा बढ़ता है। मालूम है आपको? कुरान की आयत है ये, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में इल्म वाले होते हैं। तो ये सब बताने का मेरा मकसद क्या है? मकसद मेरा ये है कि आप इस महीने के अंदर नंबर 1 तकवे की इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट करो, नंबर 2 तकवे के लिए अपने आप को रेडी करो इंशाअल्लाह। अब आते हैं रोजे के ताल्लुक से जो बातें हम लोगों को मिलती है कि रोजा, जैसे आप देखो एक गाड़ी है, चलाने के बाद उसको क्या चीज की जरूरत होती है? सर्विसिंग। कि भाई सर्विसिंग करेंगे तो वो गाड़ी पीक परफॉर्मेंस में चलेगी, उसकी माइलेज सही आएगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यहां पे अल्लाह जानता है हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए कि हम अपने आप को ओवरहॉल करें। रमजान का महीना इज दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे मिसाल के तौर पे पता है टीचर्स के कोर्सेज होते हैं, रिफ्रेशर, टीचर्स ट्रेनिंग। हाँ, क्या आपको पता है? पुलिस वाले जो होते हैं ना, उनका भी रिफ्रेशर कोर्स होता है, रिफ्रेशर कोर्स। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए अपडेट करते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। हाँ, उनके पास जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं कि क्या क्या नई चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पे माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे बात क्या है? हम लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना है। वो क्या है? हाँ, अपने आप को अपडेट करना है। रमजान का महीना इज दिस मंथ फॉर सर्विसिंग, हमारे लिए वो सर्विसिंग का महीना है। तो डियर चिल्ड्रन, कैसे सर्विसिंग? देखो, फास्टिंग जब हम रखते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है, अब ये तुम लोग बताओगे। चलो, हाँ, फास्टिंग जो हम करते हैं रोजा, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है? नाउ दिस पोर्शन मैं चाह रहा हूं तुम लोग सब बताओ, एक एक पॉइंट एक एक बच्चा बताएगा। यस, फास्टिंग से क्या बेनिफिट होता है रोजा रखने से? सब्र। कैसे सब्र? भूख को कंट्रोल करना। देखो बच्चे लोग, बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे ने कहा है। से दिस अगेन, भूख को कंट्रोल करना। उससे क्या होता है? रोजा। और फिर क्या आता है? सब्र, है ना? सब्र। भूख लगती है, भूख लगती है नहीं लगती है रमजान में? रमजान में भूख लगती है? नो। रोजे में भूख लगती है? क्या नो? लगती है, लेकिन अल्लाह के लिए कंट्रोल करते हैं। किसके लिए कंट्रोल करते हैं? तो इसमें लेसन क्या मिलता है? कौन बता सकता है? व्हाट इज द लेसन? एक पॉइंट, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? उस्मान ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, सब्र। बाकी बताओ। लुकमान ने बताया सब्र। और क्या बेनिफिट है बताइए, बताओ सब लोग। अभी बच्चे लोग सब लोग अपना दिमाग यूज करो, थिंक अबाउट इट। यस, बताओ, जोर से बोलना। ओके, गो अहेड, बोलो। यस, जोर से बोलो वंस अगेन। अल्लाह की इबादत के लिए, फॉर द सेक ऑफ। बिल्कुल सही। एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ, गुनाहों से बचना कैसे? कैसे नहीं, गुनाहों से बचना कैसे? किसको कनेक्शन? दुआ। रमजान में दुआ, राइट। वो तो नमाज और दुआ तो साल भर है। एक मिनट, मुझे ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? और बात सही है एक्चुअली। रमजान फास्टिंग
गुनाहों से बचने में हेल्प करती है। कैसे कैसे? हाँ यस, कैसे? बिल्कुल सही। शैतान जो होता है रमजान में कैद होता है, उस पर हम आने वाले हैं। देखो मैं बताता हूं, रोजा रखते हैं, भूख लगी, कंट्रोल किए, भूख लगी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। पानी पी सकते हैं, रोजे में पानी पी सकते हैं, कुल्ली करने में मुंह में पानी डालते हैं, फिर थूक देते हैं। क्यों? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मालूम है, अगर भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकते हो ना आप, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया कि घट गया? मालूम है, बहुत से लोग जो फेल होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। देखो दुनिया में टेम्पटेशंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, दुनिया में टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन क्या होता है? कोई ख्वाहिश वाली चीज दुनिया में है कि नहीं है? है, सामने आती है। एक चोर के सामने पैसे आ रहे हैं, हाँ, और वो चोरी कर लेता है, उसके पैसे नहीं है लेकिन चोरी किया। ख्वाहिश उसकी क्या थी? पैसा मेरे पास आ जाए, इजी मनी। लेकिन क्या है, वो पास हुआ, फेल हुआ। रमजान के अंदर जब हमारे सामने खाना होता है, पानी होता है, हम नहीं पीते हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि अल्लाह ने मना किया। खाना हलाल है कि हराम है? हलाल है। हलाल होने के बावजूद नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? अल्लाह ने मना किया ना। अल्लाह के लिए हलाल को छोड़ सकते हैं तो अल्लाह के लिए हराम को नहीं छोड़ सकते हैं? देखो मालूम है दुनिया में कितने सारे लोग जो गटर में चले जाते हैं, बर्बाद होते हैं। मालूम है दुनिया में कितने सारे अल्कोहलिक, शराबी, अपनी ख्वाहिशात के पैरवी करने वाले, ख्वाहिशात के गुलाम, कितने सारे लोग हैं पैसे के गुलाम होते हैं। है कि नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं बर्बाद लोग हैं। क्यों बर्बाद है मालूम है? उनको क्या समझ में नहीं आता है ये गलत है? सेल्फ कंट्रोल नहीं। सेल्फ कंट्रोल है ना, बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में। एग्जाम टाइम आ रहा है, आपको पढ़ाई करना है और दिल चाह रहा है खेलने जाओ। अभी खेलते ही रहेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम का क्या होगा? पेपर। तो कुछ सेल्फ कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए? कुछ भी तुम्हें दुनिया में करना है ना बच्चे लोग, कुछ भी तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। नहीं तो क्या है मामला? बहुत से फेल लोग हैं, मालूम है, गुलाम बन जाते हैं वो किसी ना किसी चीज के। तुम्हें गुलाम बन के जीना है? किसके गुलाम बनेंगे? अल्लाह के गुलाम बनेंगे। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता है, अल्लाह हमारा अच्छा चाहता है। हम अल्लाह के बंदे बनते हैं, अल्लाह कामयाबी देता है, दुनिया में इज्जत देता है, आखिरत में इज्जत देता है। पता है तुम्हें, मुस्लिम्स जो थे, साइंटिस्ट बड़े बड़े, साइंस की बुनियादें नहीं सेट हुई थी। वेस्टर्न वर्ल्ड डार्क एजेस में था। मुसलमान साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की। क्यों मालूम है? क्योंकि इस्लाम ने सिखाया कि हब्बुन्नासी इल्लल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, सबसे पसंदीदा लोग वो हैं अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल का मतलब फ़ायदेमंद का मतलब जो फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब देखो तुम लोग स्कूल में हो, हाँ, तुम भी किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। पूछो उधर पीछे, टैप। हाँ, फ़ायदा तुम पहुंचा सकते हो किसी को। हाँ, फ़ायदेमंद, सबसे पसंद अल्लाह को कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद। तो फायदेमंद तो बड़े लोग होते हैं ना, छोटे लोग फायदेमंद हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों? फायदा कर सकते हो, तुम भी किसी का फायदा कर सकते हो। हाँ, तो मालूम है मुसलमान साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज क्यों किए? हाँ, फायदा पहुंचाने के लिए, सवाब पाने के लिए। माय डियर चिल्ड्रन, तुम लोगों को लाइफ में कुछ भी करना है ना, तुम्हारे अंदर एक चीज कंपलसरी है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, अगर तुम ख्वाहिशात के कंट्रोल में हो, शैतान के कंट्रोल में हो, पैसे के गुलाम हो, हाँ, तो फिर क्या है? क्या करोगे? जी के एक दिन चले जाओगे दुनिया से। बहुत लोग जी के मरते हैं, हम भी चले जाएंगे। नो फायदा, कुछ फायदा नहीं। लेकिन किसका फायदा होता है? जो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल के साथ अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी गुजारता है, अच्छे अच्छे काम करता है। माय डियर चिल्ड्रन, वो इंसान फायदा पहुंचाता है।
और तुम्हें फायदा पहुंचाना है इंशाल्लाह कि नहीं? फायदेमंद बनना है कि नहीं? फायदेमंद बनने के लिए कुछ सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई गाड़ी पे कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अब तुम्हारी एक गाड़ी है, ये इसके ऊपर तुम्हें कंट्रोल होगा कि नहीं? तो ही तुम कर पाओगे ना। अगर गाड़ी हर बहाव के साथ बह जाती है, कभी यहाँ की हवा यहाँ चली गई, कभी वहां चली गई, ऐसी कश्ती कहीं नहीं पहुंचने वाली। समझ रहे हैं बच्चे लोग? और वो तकवा सीखने का महीना बस आ रहा है। तकवा सीखने के महीने में से बकेट उल्टी रख के इंटर नहीं करना। हाँ, अब मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो कई स्टूडेंट्स ने बताया कि रमजान के महीने में क्या होता है? जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना दाखिल होता है, फुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो गुल्क़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलत शयातीन, शयातीन को कैद कर लिया जाता है। माय डियर चिल्ड्रन, ये देखो एक गेट खुला है, किसी को अंदर आना है तो कैसे आएगा? डायरेक्ट वॉक इन करेगा, और यहां पे कोई गेट ही नहीं है। अगर बंद हो तो क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, फिर अंदर जा सकते हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आओ जन्नत की तरफ। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब किसी को जाना है तो और एफर्ट लगाना पड़ेगा जहन्नम जाने के लिए, और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। मालूम है, एक और हदीस से पता चलता है कि शयातीन में मरदतुल जिन, बड़े बड़े जो सरकश जिन है ना, उनको कैद किया जाता है। सरकश जिन, मालूम है जिन सब एक ही साइज के नहीं होते। जिन जो होते हैं ना, अलग अलग साइज एंड पावर के होते हैं। और जिनों के जो बड़े बड़े जो सरदार होते हैं ना, वो सबके सब क्या होते हैं? कैद हो जाते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मालूम है तुम्हें? इब्लीस जो है ना, इब्लीस, उसके पास अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। हदीस में आता है कि वो डेली रिपोर्ट लेता है, पूछता है कि तुमने क्या किए। एक बोलता है मैंने ये किया, एक बोलता है ये किया, ये किया। उनको मोटिवेट करता है कि और करो, हाँ, और बुरे काम करो। अब रमजान के महीने में सारे बड़े बड़े सरकश शयातीन कैद हो जाते हैं। हाँ, छोटे के बारे में हमें वो बात नहीं मिलती है, छोटे छोटे शयातीन। माय डियर चिल्ड्रन, बात ये है, एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। ये देखो, ये क्या है? बोलो क्या है? ये फायर फाइटर्स है। क्या हो रहा है? कौन देख के बता सकता है क्या हो रहा है? आग बुझा रहे। खतरनाक आग लगी है यहाँ पे। ये खतरनाक आग है जो बुझाने के लिए ये लोग सब आए। सही? नो, ये नहीं, ये खतरनाक आग नहीं है, ये प्रैक्टिस। सही बोले, प्रैक्टिस हो रही है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग, आग बुझाने की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग के टाइम पे ना वो खतरनाक आग में नहीं डालते हैं। ट्रेनिंग के लिए खतरनाक आग में डालेंगे, जाओ खतरनाक आग में जाके ट्रेनिंग लो, ऐसे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, सेफ एनवायरनमेंट में उनको बताया गया आग को ऐसे ऐसे बुझाते हैं। एक बार ट्रेन हो गए, फिर जिंदगी भर ऐसी आग बुझाएंगे कि इसके अंदर, हाँ, कि खतरनाक आग भी बुझाएंगे। देखो बच्चे लोग, अभी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, शैतान। मालूम है, शैतान के पास बहुत सारे वेपन्स हैं हमारे खिलाफ। उसके वेपन्स में से एक बड़ा वेपन है वसवसा डालना। कि जैसे आप बैठे हो, बैठे बैठे ख्याल आता है, तुमको लगता है मेरी खुद की आइडिया है, और वो खुद की आइडिया नहीं होती, वो शैतान की तरफ से वसवसा आया है दिल में। मालूम है, कितने सारे लोग जो ये रियलिटी नहीं जानते हैं ना, उनको लगता है सब आइडिया जो मेरे दिमाग में आते हैं सब मेरी ही आइडिया है। सब आइडिया आपके दिमाग में आती है, आपकी आइडिया नहीं होती है। हमारा दुश्मन है शैतान। उसको क्या चाहिए? आपके पैसे चाहिए, रुपये चाहिए, डॉलर्स चाहिए, उसको जहन्नम पहुंचाना है, बराबर। अब जो बड़े बड़े जो जिन है ना, शयातीन, कैद हो जाते हैं रमजान के महीने में, फॉर द 1 month ऑफ रमजान। अब तुम हराओ, अब तुम उसको हराओ, अब नेक बन जाओ, अब नेक बनो, अच्छे बन जाओ, नेक बनो। फिर उसके बाद रमजान के बाद क्या होगा? हमेशा कैद रहेगा, हमेशा कैद रहेगा शैतान। हाँ या ना? रमजान के बाद क्या होगा? आजाद होगा, फिर आके अटैक करेगा, नहीं करेगा? लेकिन तुम लोग क्या हो है? ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, रमजान की ट्रेनिंग लेके जा रहे हो।
लेकिन ट्रेनिंग टाइम पे अगर आप लेजी बनोगे, इसके अंदर दिल ओपन नहीं करोगे ना, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली। दिल से चाहो तो ही मिलेगा। इस रमजान को पूरे दिल और जान से अल्लाह ताला से मदद मांगो कि अल्लाह मुझे तकवा चाहिए, मुझे आई वांट इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सबसे ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के पास कौन होते हैं? तकवे वाले होते हैं। आपको चाहिए, गटर वाली जिंदगी नहीं चाहिए, हाँ, जहन्नम की आग ले जाने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। हमको जिंदगी चाहिए जन्नत वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिससे कल क़यामत के दिन आमाल नामा कौन से हैंड में चाहिए? राइट हैंड में चाहिए। तराजू में जब गुड डीड्स बैड डीड्स आएंगे तो कौन सी साइड हैवी चाहिए? गुड डीड्स के बैड डीड्स कौन सी साइड भारी? गुड डीड्स। कौन सी साइड भारी चाहिए? उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए? सेल्फ कंट्रोल सीखने का महीना है, तकवा सीखने का महीना है माय डियर चिल्ड्रन। तो मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं। जैसे ये क्या है? बोलो, इसकी क्या जरूरत होती है? कौन? एक बच्चा बताओ, चलो एक बच्चा यहाँ पे आके कौन बता सकता है? कौन? चलो इधर। व्हाट इज दिस? क्या मकसद क्या है मुझे बताओ। It supports to balance. बैलेंस। Yes. कब चाहिए ये? When you don't know how to ride a bicycle. आफ्टर यू लर्न, सीख गए, उसके बाद चाहिए? No, we do not need that. व्हाट इज द कनेक्शन विथ रमजान? किसको कनेक्शन समझ में आ रहा है? हाँ, कौन? नहीं, कौन? हाथ उठा के बताओ, चलो कौन? ऐसे नहीं, बैलेंस कैसे? सपोर्ट व्हील कैसे? नो वन? यस यस बच्चे लोग बताओ। हाँ, ट्रेनिंग वेरी गुड माशाल्लाह, करेक्ट। ट्रेनिंग, रमजान ट्रेनिंग टाइम, ये ट्रेनिंग टाइम है, ये ट्रेनिंग टाइम है ना। जिंदगी भर थोड़ी ऐसे चलाएंगे, हाँ, जिंदगी भर ऐसे चलाएंगे? ऐसे साइकिल में ऐसे चलाऊंगा जिंदगी भर, हाँ? सीख गए तो बराबर से टू व्हील्स ना। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? चलाए हो तुम लोगों ने इसके साथ, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? मजा नहीं आता है ना। ऐसे साइकिलिंग करने में मजा आता है, स्पीड मिलती है, कितनी डिफिकल्टी होती है। ये ट्रेनिंग के लिए। सी माय डियर चिल्ड्रन, रमजान बाद शैतान आजाद होगा, लेकिन हमारी ट्रेनिंग हो गई ना तो हम उसको हराएंगे फिर, हाँ, हम उसको हराएंगे। तो मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी रिपोर्ट बताना चाहता हूं। मुझे देखकर है ना बहुत एक दिमाग खुला आया ने। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक रिपोर्ट है जो आगे आने वाली है। जब एक चीज हम लोग करते हैं, एक दिन किए, सुनो, कोई भी चीज, कोई भी डिफिकल्ट चीज बताओ, नेक अच्छी चीज है लेकिन डिफिकल्ट बताओ, अच्छे नेक काम लेकिन डिफिकल्ट। रोजा रखना डिफिकल्ट नहीं, सब लोग साथ में रखते हैं। रोज जो कंटिन्यूस करना होता है, ऐसी चीज बताओ जो कंटिन्यूस करना होता है लेकिन डिफिकल्ट। कौन सी नमाज? ये तरावी बोल रहे हैं। और कोई मिसाल? ठीक है, तहज्जुद, जोर से बचना। और कोई चीज? यस, फजर की नमाज। चलो ये मिसाल ले ली। सोचो फजर की नमाज में उठ के, फजर की नमाज सोने का टाइम, हाँ, वो टाइम पे नमाज पढ़ना है, उठकर अच्छे से मस्जिद जाकर। सुनो बच्चे लोग, फजर के टाइम पर आदमी उठता है, अब जा रहा है नमाज पढ़ने। उसने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा अल्लाह की मदद से। फर्स्ट डे गया, सेकेंड डे बोलता है मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर से वो कोशिश करता है, जाता है। तो मुझे बताओ सेकेंड डे और फर्स्ट डे में क्या फर्क है? सेकेंड डे आसान हुआ, थोड़ा आसान हुआ। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, अच्छा हुआ। ऐसे कंटिन्यूस अगर कुछ दिनों तक करता रहता है, फॉर इंस्टेंस सपोज करो, एक रिपोर्ट में आता है कि अलग अलग डेज बताया है, अलग अलग रिपोर्ट्स में। एक रिपोर्ट में 21 डेज दिया है, एक रिपोर्ट में 35 डेज दिया, अलग अलग, यानी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग। हैबिट बनने में कितने दिन लगते हैं? यू नो हैबिट किसको बोलते हैं? आदत।
आदत किसको बोलते हैं? यानी कि फजर की नमाज का टाइम हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक पर्सन अलर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली मैं जा रहा हूं, क्योंकि कई दिनों तक कर रहा है ना रेगुलर वो इंसान, तो आगे जाकर वो करना आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? आसान। इट्स अ हैबिट। अब बताओ, रमजान के एक महीना, रमजान एक दिन नहीं है, 1 मंथ है। 1 मंथ तक हमारा दुश्मन शैतान कौन है? कैद है। और हम लोग कोई अच्छी काम करेंगे इंशाल्लाह, 1 मंथ के अंदर हैबिट बनने का चांस लग रहा है कि नहीं? हाँ, एक रिपोर्ट में 36 डेज दिया था, 36 डेज टू मेक अ हैबिट। हाँ, तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं क्या बता रहा हूं तुम लोग सबको, अभी बेहतरीन चांस है, हमारा दुश्मन कैद होगा। अच्छी अच्छी हैबिट बनाओ। हैबिट का मतलब एक दिन में हैबिट होती है, हैबिट एक दिन को बोलते हैं। 1 डे क्या मैंने हैबिट हो गई मेरी, 1 डे में हैबिट होती है। हैबिट के लिए तुम्हारे पास 30 डेज है माशाल्लाह। 30 डेज में अच्छी अच्छी हैबिट फॉर्म करो, फिर क्या करेंगे उसको, शैतान आजाद होगा तो उसको क्या करेंगे, हराएंगे, उसको हराएंगे। और ये जरूरी है हमारे लिए, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी माय डियर चिल्ड्रन। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन, और वो ये है कि हमारी रमजान जो है ना हाईजैक हो जाती है। हाईजैक, हाईजैकर मालूम है? हाईजैकिंग मालूम है? हाईजैक का मतलब, हाईजैकिंग का मतलब, अभी प्लेन कहाँ है यहाँ पे हमारे पास? रमजान हाईजैक कैसे? अपने आप पे कंट्रोल, किसी और चीज पे कंट्रोल करना, किसी और का कंट्रोल करना। रमजान हाईजैकर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा चलो, रमजान हाईजैकर क्या है पहले तो बताओ, व्हाट इज दिस रमजान हाईजैकर्स? हाँ, क्या है? देखो माय डियर चिल्ड्रन, रमजान शैतान बोल रहे हो तो बड़े बड़े शैतान तो सब कैद होने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमारे रमजान के ख्वाब, रमजान के गोल को हाईजैक करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर चिल्ड्रन, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, रमजान की इंपॉर्टेंस सुने, रोजे की इंपॉर्टेंस सुने, तकवे की इंपॉर्टेंस सुने। अभी हाईजैकर्स को भी पहचान लो। क्यों पहचानो? क्यों पहचानो? हाईजैकर क्यों पहचानने का है? बचने के लिए। क्यों? अपनी रमजान को बचाने के लिए। क्यों? लालकुम तत्तकुन तक पहुंचने के लिए। क्यों? जन्नत जाने के लिए। क्यों? हमेशा की खुशी के लिए। क्यों? वहां पे बहुत सी नेमतें हैं जन्नत में। सो माय डियर चिल्ड्रन, तुम लोगों को हाईजैकर्स जानना है कि नहीं जानना है? ये टॉप हाईजैकर्स बताने वाला हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं तुम लोग बताओ, देखते हैं तुम लोग कितना गेस कर सकते हो। तुम लोग भी रहते हो यही दुनिया में रहते हो ना, कि तुम लोग और कोई प्लेनेट से आए हो? आप लोग सब कहां से आए हो? आप और मैं सेम दुनिया है ना, तो जो यहां पे लिखा है वो तुम लोग भी देखे होंगे। चलो, आई वांट टू नो, आप में से कितने लोग अभी हाथ उठा के बताएंगे किसको मालूम पड़ा कि ये हाईजैकर दिख रहा है? हाईजैकर मालूम? यहां मत ढूंढो, चलो एक एग्जाम्पल कौन देगा पहले? लेट्स सी। एक हाथ ऊपर हो रहा है, यस। एक माइक है और एक कुछ ऐसा बाय एनी चांस एक और माइक है? अच्छा माइक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो क्या चाहिए और बोलो। तमन्ना किया मैंने और अल्लाह ने दे दिया सीधा, अल्हम्दुलिल्लाह। नफ्स, ओके माशाल्लाह, नफ्स, गुड वन। और बताओ, यस बताओ तुम। हाँ, मोबाइल, क्या बात बोलो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें वहां नहीं बैठा होना चाहिए, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। व्हाट्स योर नेम? अहमद। मुझे बताओ, यू फील मोबाइल हाईजैक करता है? कैसे? डिस्ट्रैक्ट्स। और रियली इसने ना, ही हैज हिट द नेल ऑन द हेड। ये होता है ना, आदमी है ना, खीला लगाया उसके आसपास टक 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 मारे जा रहा है। ये ही डिड इट व्हाट, कि ही हिट द नेल ऑन द हेड माशाल्लाह। कि रमजान का मुझे तो लगता है ना, ये मैंने पावर पॉइंट जिस टाइम पे बनाया था ना, तो शायद मैंने मोबाइल आगे रखा है, लेकिन अभी तो है ना नंबर 1 हाईजैकर है ना मोबाइल है। हाँ, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। बच्चे लोग, हम लोग अच्छे अच्छे प्लान बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अच्छा अच्छा इंटेंशन कर रहे हैं। हमने गोल बनाया, हैबिट फॉर्मिंग करेंगे। हैबिट वाली चीज क्या होती है? इजी होती है, बराबर। लेकिन हमारे सारे प्लान्स पे पानी फेर देने वाली चीज क्या है? हाईजैकर्स। और हाईजैकर्स में वी हैव टू बी बीवेयर कि हम लोग रमजान में मोबाइल को कंट्रोल में रखें।
अच्छा, मोबाइल कैसे बर्बाद कर सकता है? यू नो होना क्या चाहिए? अट्रैक्ट करके टाइम पास करें। बच्चे लोग, आप लोग सब सुनो, टाइम एक बार आता है हमारे पास। जो टाइम एक बार गया वो फिर से आएगा? नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा। समझदार वो इंसान है जो अपॉर्चुनिटी को ना मिस करे। शेख, टाइमर मेरे पास नहीं है, जरा भी आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कितनी मिनट है? ओके, 25 मिनट्स में हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, गोल सेटिंग कम से कम करना चाहता हूं। सो माय डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग है ना, मोबाइल को टेम करना पड़ेगा। जैसे देखा है, कुत्ता होता है, कुत्ता, उसको वो लोग क्या करते हैं, पट्टा बांध के रखते हैं ताकि कंट्रोल में रहे। तो तुम मोबाइल को कैसे टेम करोगे? मोबाइल को टेम, सी आई टेल यू समथिंग। अगर लाल लकुम तक, पीछे वाले सब बच्चे यहाँ सब लोग ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सी माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज तुमको डिस्टर्ब ना करे। ओनली फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स इंशाल्लाह। कंट्रोल योरसेल्फ थोड़ा सा, क्योंकि कीमती है। हम लोग छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ जन्ना, वी आर टॉकिंग ऑफ लाल लकुम तत्तकून। ओके, तो सब लोग ध्यान देंगे इंशाल्लाह। यहां पे बात क्या है, मेरा सवाल क्या है, आपको मोबाइल को कंट्रोल करना है। मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा, मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा कि आप मोबाइल को कंट्रोल करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलता हूं, रियली तुम्हारे अंदर गट्स है ना, गट्स, हिम्मत है ना, हिम्मत, बुज़दिल नहीं हो ना अगर, तो मोबाइल को छोड़ दो। हाँ, मोबाइल को छोड़ दो। ऐसे कोई मर जाएंगे मोबाइल के बगैर? पहले क्या मोबाइल के बगैर नहीं जीते थे? हाँ, सब लोग, बच्चे लोग, ये सबसे बड़ा हम लोगों का है ना, वो है डिस्ट्रैक्शन है रमजान का, मोबाइल फोन। उसको छोड़कर आप लोगों के पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं, भरो शेड्यूल को, अच्छी चीजों से भरो। सुनो, सब लोग अच्छे अच्छे गोल सेटिंग करो। ये गोल सेटिंग है ना, क्योंकि हम लोग अगर अच्छा गोल टारगेट सेट करेंगे और डिस्ट्रैक्शंस को आउट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। और मोबाइल को कैसे कंट्रोल करेंगे? नंबर 1, स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ करके। देखो, जिसका पर्सनल हो तो उसको तो स्विच ऑफ ही कर दो, लेकिन मम्मी अब्बा के मोबाइल को आप स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते। घर का मोबाइल हो, समथिंग लाइक दैट। पासवर्ड, हाँ, देखो आई एम टेलिंग, कीमती है ना ये रमजान। तुम लोग पकड़ के बांध सकते हो, एक भी शैतान को बांध सकते हो, एक भी शैतान को पकड़ के बांध सकते हो तुम लोग? पूरे इतने सारे शयातीन, वसुलसिलती शयातीन, हदीस में क्या आ रहा है? बुखारी की हदीस है, शयातीन कैद किए जाते हैं, शयातीन कैद किए जाते हैं। बच्चे लोग, इतना अच्छा मौका, जन्नत के दरवाजे खुले, जहन्नम के दरवाजे बंद, सारे शयातीन कैद। वयुनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर का काम करने वाले आगे बढ़, या बागी अशर अक्सिर, ए बुरा काम करने वाले रुक जा। सोचो सोचो, इतना अच्छा टाइम, और तुम मोबाइल पे टाइम वेस्ट करोगे। मोबाइल है ना, मोबाइल क्या करता है ना बच्चे लोग, हम लोग इंसान है कि रोबोट से? हम लोग इंसान हैं। ये मोबाइल है ना, इंसान की साइकोलॉजी को अपील करने के लिए वो लोग बनाते हैं ऐसा, उसके अंदर बेस्ट दिमाग दुनिया के काम करते हैं, कैसे आप अपना टाइम वेस्ट करो, कैसे आप अपनी जिंदगी वेस्ट करो। लगे रहो, लगे रहो, नहीं लगना, स्टॉप इट। गेम्स में लगे रहो, फर्स्ट लेवल किए, कम ऑन, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तुम्हें दिखता नहीं है कि कैसे ट्रैप कर रहे हैं? ट्रैप को के अंदर नहीं फंसना है। मैं बोलता हूं, ऐप लॉक्स लगवाओ, ऐप लॉक्स होते हैं ना। मम्मी अब्बा को बोलना मुझे नहीं चाहिए। कुर्बानी किसको बोलते हैं? बिलाल तो रेत पे लेटे हुए थे। हाँ, कितने सारे लोग हैं जो जन्नत के रास्ते पे चलने के लिए अपनी जान तक दे दिए। मालूम है, पिछले कौमों में ऐसा होता था कि एक आदमी को कहा जाता था कि तुम छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो। वो नहीं छोड़ता था तो उसके सर पे आरी रख के चला दी जाती थी, और वो नहीं छोड़ता था इस्लाम। और तुम लोग मोबाइल नहीं छोड़ सकते। हाँ, जन्नत लाल लकुम तत्तकून, तकवा सीखने के लिए आप मोबाइल के गुलाम बन के रहेंगे, हाईजैक कर देगा मोबाइल तुम्हारी। रमजान गई, ख्वाब देखते रहो, बस बातें करो, फिर कुछ मिलेगा नहीं, खाली हाथ। तकवा सीख के नहीं आएंगे ना। इतना अच्छा महीना मिल रहा है, इतना अच्छा चांस मिल रहा है, और इसको वेस्ट कर देंगे। डोंट डू दैट। हाँ, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो देखो क्या करो, ऐप लॉक्स लगाओ,
कभी ऐप टाइमर लगा सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, कभी कुछ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, तुमको क्या चाहिए पूछो अपने आप से, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ। मौका रमजान में उतना ही टाइम है, दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, रमजान में भी कितने घंटे होते हैं, वो 24 घंटे ही मैनेज करना है, राइट, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी नेक्स्ट हाईजैकर वो है खाना पीना। जी हाँ, रमजान इज फेमस फॉर फूड। और आपकी मम्मीज को भी थोड़ा ब्रीदिंग टाइम दो, उतना ज्यादा डिमांड कि भाई ये भी पकाओ वो भी पकाओ वो भी पकाओ, रमजान में बहुत भूख लगी है। हाँ, तो खाने पीने का महीना है रमजान। हाँ, तो क्या करो, फूड के ऊपर कंट्रोल रखो, डिजायर्स पे कंट्रोल रखो माय डियर चिल्ड्रन, ये बात को हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। सेकेंड चीज, लेजीनेस, ये भी हाईजैकर है। रमजान में बाज लोग सुबह उठ रहे हैं इतना लेट, ज़ोहर के टाइम पे सुबह उठ रही, हाँ, और जितना नॉर्मली सोते हैं उससे 1.5 to 2 टाइम्स सोते हैं, बोले रोजा रखा हूं मैंने। हाँ, सो माय डियर चिल्ड्रन, लेजीनेस तुम्हारी रमजान को हाईजैक कर सकती है। सुस्ती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं सुस्ती से, मैं तेरी पनाह मांगता हूं सुस्ती से। है नो प्रॉब्लम। सो सुस्ती हमारा हाईजैकर्स की लिस्ट में है। शॉपिंग, रमजान शॉपिंग का मंथ है। हाँ, ये भी क्या है, हाईजैकर्स की में से है, क्योंकि रमजान शॉपिंग। मैं हर साल एक बात बोलता हूं, लोगों को कहता हूं कि अगर कोई महीने को शॉपिंग का मंथ बनाना है ना, चलो शाबान को बना देते हैं, शाबान को शॉपिंग का मंथ बना लेंगे। जो शॉपिंग करना है शाबान में ही कर लो। एटलीस्ट रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, और शॉपर्स। हाँ, अच्छा, ये मालूम है, ये मुझे एक आर्टिकल बहुत अच्छा मिला था, ये लॉकडाउन के टाइम का था। मैनी हैदराबादी मुस्लिम से नो टू रमजान शॉपिंग। तभी की बात है, बोले नहीं हम लोग नहीं करेंगे शॉपिंग, टाइम वेस्टर है, पूरे डील ढूंढते रहो, ये दुकान में ये दिखा, अब ये दुकान में इससे अच्छा डील मिल रहा है, वो दुकान में ये, जिंदगी निकल जाती है। रमजान में इतना बड़ा मौका मिस हो जाता है। और रमजान का हाईजैकर की लिस्ट में और कौन है, गेम्स। रमजान गेमिंग चैंपियनशिप, भाई गेमिंग चैंपियनशिप करना है कोई और मंथ में कर लो, मैं चैंपियनशिप के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कोई हलाल गेम की चैंपियनशिप हो हलाल, लेकिन रमजान ही मिला तुम्हें, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद है, शयातीन कैद है, और तुम गेमिंग कंपटीशन में हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, ये रमजान स्पेशल, बहुत कितनी बुरी बात। रमजान टूर्नामेंट, सॉकर टूर्नामेंट। हाँ, और मुंबई की बात यह है कि मुंबई की गलियों में लोग क्या करते हैं, बैडमिंटन निकालते हैं रमजान में। हाँ, और रमजान में बैडमिंटन बहुत खेलते हैं, कैरम निकालते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है हैदराबाद में। हाँ, और क्या देखे हो तुम लोगों ने, और क्या, बॉल, फुटबॉल, ओके फुटबॉल, ओके। सो माय डियर चिल्ड्रन, रमजान में बी केयरफुल, हाईजैकर्स तुम्हारे हमारी अभी तक जो भी बात की है ना, ये हाईजैकर्स को क्या चाहिए कि हमारी रमजान को हाईजैक कर ले। प्लेन हाईजैक होते देखा है ना, अपनी रमजान को हाईजैक होते देखा है, तुमने देखा है, तुमने देखे अपनी रमजान हाईजैक होते हुए, हाईजैक होते हुए देखा है किसी की रमजान, किसी की भी, अपनी बात मत करो। हाँ, रमजान हाईजैक हो सकती है, हो सकती है डियर चिल्ड्रन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया हाईजैकर्स की लिस्ट में, सोशल मीडिया, ये देखो रमजान के अंदर क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ यूजर्स सोशल मीडिया पे बढ़ जाते हैं। इबादत के महीने में जितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, फेसबुक पे वगैरह, टाइम बढ़ जाता है। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, टंग, जुबान को भी कंट्रोल करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, हमारा गोल है ना जो आउटस्टैंडिंग रमजान। अब मैं कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स देना चाहता हूं। देखो, फर्स्ट टिप ये है, अपने दिल को साफ करो। साफ करो मतलब मॉप का है, मॉप कैसे, ब्रूम से, झाड़ू मार के। देखो बच्चे लोग,
रमजान में एंटर हो रहे हो, दिल को साफ करके एंटर होना। साफ करने का मतलब किसको मालूम है? नीयत साफ करना, गुनाहों की चाहतों से बचाना। एक और चीज है, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रख के मत जाना। तुम बताओ, ये इधर आओ, तुम इधर बताओ, तुम एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया? किसी ने आज तक कुछ बुरा किया ही नहीं? वाह माशाअल्लाह, कीप इट अप। और कोई है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ? हाँ, कोई है? सब यहाँ पे आप लोग कौन सी दुनिया से आए हो? मैं बोला था ना स्टार्टिंग में, तुम लोग कोई दूसरी दुनिया से आए हुए दिख रहे हो। माशाअल्लाह, क्या दुनिया है ओशिद, मानना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को किसी ने कोई परेशानी नहीं किया आज तक? ऐसा किसी के साथ हुआ है? किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कभी किया है किसी के साथ? नहीं? हाँ है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है? किया है? देखो बताओ, अब बताओ मत, दिल में बुरा लग रहा है, अभी भी लग रहा है? अब उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। सब लोग सुनो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? हाँ, अरशद। ये सिर्फ अरशद की बात नहीं हो रही, क्या? अशद, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? तुम्हारी बात हो रही है। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसको माफ कर दो। किसके लिए? किसके लिए? बच्चे लोग सुनो, सब लोग सुनो। हम लोग यहाँ पे ख्वाब क्या देख रहे हैं? हम लोग बात क्या कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग रमजान। क्या बात कर रहे हैं? मैं आऊं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हमारा इतना अच्छा ख्वाब जो है ना, दिल में बैगेजेस भर के जाओगे ना, वो दिल इबादत नहीं कर सकता है वैसे जैसे एक साफ दिल कर सकता है। समझे बच्चे लोग? हाँ, अच्छा ये देखो, ये दुआ याद है तुम्हें? किसको ये दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल फ़ाफ़ु अन्नी। कौन सी दुआ है ये? कौन सी दुआ है? लैलतुल क़द्र। इसका मीनिंग कौन बताएगा? देखे बगैर कौन बताएगा इसका मीनिंग? देखे बगैर। आओ, आज चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं है। हाँ, आ जाओ इधर। देखे बगैर। ठीक है, यू ट्राइड, माशाल्लाह, गुड। और कोई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफून। कौन देखे बगैर बताएगा? मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। चलो, यस बच्चे बोलो। को माफ करने वाला है, माफी को पसंद करने वाला है, लिहाजा मुझे माफ कर। माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून। अल्लाह तू माफ करने वाला है। हाँ, माफ करने को पसंद करता है। माफ करने को पसंद करता है अल्लाह ताला। खुद भी माफ करना पसंद करता है, और हम माफ करें ये भी पसंद करता है अल्लाह ताला। बच्चे लोग, हम माफ करें ये अल्लाह ताला। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? बच्चे लोग सुनो, रमजान का एक और गोल है। एक है, किसने कहा? ये मेरे दिल की बात कहा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा मैं बोलने वाला हूँ? हाँ, मैं रियली यही बोलने वाला था। रमजान का एक और गोल है माफी हासिल करना। तो अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है मुझे। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत से लोगों का कैसा है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं किसी को नहीं माफ करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, सालों साल से किसी को माफ नहीं करते, सब जमा करके रखते हैं। तुम उनमें से हो कि नहीं हो? आप सब उनमें से हो? उनमें से हो, हाँ या ना? सब हाँ बोलेंगे कि ना? नो, वेरी गुड। मतलब अपनी रमजान में आपको आउटस्टैंडिंग रमजान चाहिए ना, तो दिल को साफ करके जाओ। क्या करेंगे? दिल को साफ करके जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, नेक्स्ट दूसरी चीज जो करना है आउटस्टैंडिंग रमजान के लिए, हाँ,
वो है गोल्स। सुनो सब बच्चे लोग, अब ये काम तुम्हें आज के आज करने का है सब बच्चों को। सिर्फ एक होमवर्क दूंगा बच्चों को, और सब बच्चे है ना, ये होमवर्क है ना किसके लिए करेंगे मालूम है? किसको राजी करने के लिए? और किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? अपने लिए। सर तो हेल्प करने के लिए, उस्ताद हेल्प करने के लिए। सब बच्चे सुनो, अभी तुम लोगों ने गूगल मैप्स यूज किया किसी ने? उसमें लोकेशन डालना होता है कि नहीं डालना होता है? अगर लोकेशन ही नहीं डालेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? कुछ बताएगा वो? कितने सारे लोग हैं उनके पास कोई गोल ही नहीं होता है। कोई गोल तो होना चाहिए, मंजिल। एक गोल हमारा क्या है? तकवा सीखने का गोल, बराबर? तो माय डियर चिल्ड्रन, अब मैं तुम लोग सबको एक बात जो बोलना चाहता हूं, ये हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा है कि हम लोगों को गोल करना है, गोल बनाना है। हाँ, एक मिनट, मैं कुछ अच्छे गोल्स आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं स्पीड मेरी स्लो हो रही है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, गोल जो बनाओ ना, अब मैं आप सब बच्चों को है ना, ये लास्ट सेक्शन में मैं चाहता हूं तुम लोग सब बैठ के ना अपने गोल सेट करो इंशाल्लाह। गोल्स में ना नंबर 1 गोल क्लियर होना चाहिए। क्या गोल है? हाँ, गोल क्लियर है यानी क्या? देखो, कुछ गोल्स जो है वो तो हमारे मेन बड़े वाले गोल्स है, जन्नत, मगफिरत, तकवा सीखना। लेकिन कुछ जो गोल्स होंगे वो गोल तक पहुंचने के लिए गोल्स होंगे। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? तुम बताओ, तुम इधर आओ। हाँ, इधर आओ। व्हाट डू यू थिंक? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कम हियर, नो प्रॉब्लम, इधर आ जाओ। नहीं, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू, वो कम कम। अब हमें गोल पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है, राइट? ये मेरा लास्ट सेक्शन चल रहा है। कहीं पे अगर पहुंचना है, जैसे अभी तुम घर से निकले, कैसे है स्कूल? हाँ, फादर ने छोड़े, ओके। अब कुछ गोल था तुम लोगों का कि ऐसे ही स्कूल तक पहुंच गए बाय मिस्टेक? हाँ, कि कुछ गोल था, मंजिल थी, या ऐसे ही बाय चांस आ गए स्कूल? मंजिल थी। कहीं मंजिल तक पहुंचना है ना, तो हम लोगों को क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए, लेकिन गोल चाहिए। गोल ही नहीं है। फुटबॉल खेले हो, गोल स्कोर करना है, गोल। अभी गोल पोस्ट जो है ना स्कोर करने जा रहे हैं ना, तो गोल पोस्ट वहां से यहाँ गए, फिर वहां भाग रहे तो वहां से यहाँ कर दी। ऐसे ऐसे आप कितने गोल स्कोर कर लोगे? हाँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बच्चे लोग, तुम लोगों के सामने गोल होना चाहिए, गोल। रमजान में गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब कुछ टारगेट होना चाहिए, टारगेट। रमजान बाद अपने आप को चेक करना, मैंने अपने टारगेट कितना अचीव किया। तो कैसा टारगेट चाहिए? हाँ, देखो, जो गोल सेटिंग करो बच्चे लोग, ये क्लियर बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है। उसको मेजरेबल रखो, मेजरेबल। जैसे मेजरेबल की मिसाल, मैं कुरान रोज इतना कुरान रीड करूंगा, मैं रोज इतना कुरान याद करूंगा, मैं तरावी की नमाज इंशाल्लाह डेली पढ़ूंगा इतनी रकात प्रॉपर्ली से। हाँ, मैं इस्लामिक लेक्चर सुनूंगा। क्यों मालूम है? ये बैटरी डाउन होती है हमारी, हम लोग सबको चार्जिंग चाहिए। मैं भी फ्री टाइम में लेक्चर सुनता हूं ताकि चार्ज हो जाऊं, ईमान बढ़ता है। रिमाइंडर्स आर बेनिफिशियल फॉर बिलीवर्स, इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। याद दहानी मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। याद दहानी क्या होती है? व्हाट इज याद दहानी? रिमाइंडर। व्हाट इज याद दहानी? रिमाइंडर। जो मोमिनों को फायदा पहुंचाती है वो क्या है? व्हाट इज इट? क्या है? हाँ, यस, जिक्र, जिक्र, इन्ना ज़िक्रा। वैसे जिक्र का मतलब याद दहानी। सी माय डियर चिल्ड्रन, आपको कुछ गोल सेट करना है फॉर योरसेल्फ। जो गोल क्या होंगे?
स्पेसिफिक। हाँ, कितने गोल सेट करो? सिर्फ 5, सिर्फ 5 फॉर दिस रमजान। अच्छा, अभी तुम्हें हम लोग है ना 5 मिनट देंगे, 5 मिनट में 5 गोल तुम लोग सेट कर सकते हो। पेन एंड पेपर है सबके पास? कैसे स्कूल के बच्चे हो तुम लोग सब? मतलब अच्छा, अभी आप लोग अभी लर्निंग मोड में हो, सुनने के। ठीक है, चलो इंशाल्लाह पेपर मिल जाएगा। 5 गोल एक एक बच्चे को सेट करना है। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, रमजान के लिए। पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। क्यों करना है? क्यों करना है? कि ये मेरा गोल है, मैं ये गोल स्कोर करूंगा इंशाल्लाह। करेंगे? हाँ, तो स्पेसिफिक क्लियर गोल है कि गोल कहां है। मेजरेबल चाहिए, एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब ऐसी चीज जो कर सकते हैं। बोले मैं इस रमजान में स्पेस में चले आऊंगा, नॉट पॉसिबल। ऐसे हो जो एक्शनेबल हो, जो अचीव कर सकते हैं। अचीवेबल बोलो। अचीवेबल यानी कि रियलिस्टिक हो। हाँ, रियलिस्टिक। बहुत ज्यादा ओवर मत बना दो कि मैं हाफिज कुरान इसी महीने में बन जाऊंगा और स्टार्ट भी नहीं किए। हाँ, और टाइम बाउंड यानी टाइम के साथ, कितने टाइम में आप कैसा गोल अचीव करेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, अब हमारा टॉपिक जहां से स्टार्ट किए थे ना, वहीं पे वापस आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रमजान। क्या कौन सी रमजान चाहिए? आउटस्टैंडिंग रमजान। वो आउटस्टैंडिंग रमजान के लिए आपके पास ये गोल सेट हो ना, गोल, तो आपके चांस सक्सेस के बढ़ जाएंगे। जब गोल सामने होगा ना आपके सामने, एक होता है बिना गोल के, बिना प्लानिंग के। अच्छा बोलो, कभी ट्रैवलिंग के लिए गए हो सफर पे? चलो कोई एक आदमी बताओ, तुमने पैकिंग होते देखा है? सफर की पैकिंग। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नॉलेज वाला बच्चा है वो इधर आओ। कौन आएगा? हाथ उठाओ। कौन? हाथ उठाओ। कौन से बच्चा? अरे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ इधर आओ, जल्दी आओ। सफर में जाते हैं, इधर आओ। तुम कहां पे गए हो सफर पे? केरला गए हो। इधर आओ, वेरी गुड नॉलेज, माशाल्लाह। ये बताओ कैसे जाते हैं तुम लोग? एक एग्जांपल, बाय प्लेन या बाय ट्रेन? बाय ट्रेन। तो अभी पैकिंग होते देखे हो तुमने? यस। तो उसमें क्या घर का पूरा सामान पैक कर देते हैं? नहीं, सिर्फ कपड़े। अच्छा, क्यों? सुनो, वहां पे सिर्फ कपड़े वगैरह सारी चीजें पसंद की। अगर आपको मिसाल के तौर पे टेबल पसंद है, टेबल लेके जाते हैं? हाँ, क्यों? उसको लेके नहीं जा सकते। हाँ, मतलब क्या जरूरत है भाई? छोटा सा सफर है, फोकस करते हैं मेन चीजें। अच्छा ये बताओ कि कोई पर्सन अगर बगैर तैयारी के ऐसे ही चले जाए सफर पे, ऐसे ही, तो क्या होगा? उसका सफर और अच्छा होगा? बात सुने, ये रमजान स्टार्ट हो रहा है अभी, ऐसे ही गार्डन में आ गए, ऐसे नहीं करो। गोल सेट करो, गोल। रमजान में जा रहे हो, गोल सेट करके जाओ। सफर पे कोई बगैर तैयारी के जाता है तो ऐसे पर्सन को सफर में क्या होता है? सफर में सफर होता है, सफर ज्यादा होता है। हाँ, इंग्लिश का सफर, राइट? हिंदी के सफर में इंग्लिश का सफर हो जाता है। तो बच्चे लोग, इससे पता ही चलता है, जो आदमी प्लानिंग करता है उससे क्या पता चलता है सीरियस है कि नहीं है। जो प्लानिंग करते हैं उससे क्या पता चलता है कि ये सीरियस है कि नहीं है। सीरियस हो तो प्लानिंग करोगे, तो वही मैं चाहता हूं, प्लानिंग करो। देखो, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हारे पास से लेके नहीं जाना है। आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि तुम लोग सब बच्चे एक आउटस्टैंडिंग रमजान गुजारो, और सबके सब बच्चे लाल्लकुम तत्तकून, तकवा सीखने का गोल है, हासिल करें इंशाल्लाह। हाँ, सबके सब बच्चे जन्नत जाने में आगे रहें, शैतान को डिफीट करें। और जब आप प्लानिंग करोगे, इससे पता चलता है यू आर सीरियस अबाउट इट। देखो, अगर सोचो, आप लोग सब बताओ कि कोई अगर कहीं जा रहा है, घूमने जा रहा है या कोई सिटी में जा रहा है, वहां पे जाने की ट्रेन टिकट बुक नहीं किया, प्लेन टिकट बुक नहीं किया, होटल बुकिंग नहीं किया, उससे क्या होगा? उसका सफर में क्या होगा? आसानी होगी, मुश्किल होगी? मैं आप सबको क्या सजेस्ट करता हूं, ऐसे ही इस रमजान में नहीं जाना। आप लोग क्या गोल से जाओगे? इंशाल्लाह इस रमजान को आउटस्टैंडिंग रमजान बनाना है, बेस्ट रमजान बनाना है। अब तक की लाइफ 13 साल की, उसकी बेस्ट रमजान बनाना है।
लेकिन ये बेस्ट रमजान ऐसे नहीं होता है जैसे एप्पल टूट के सर पे गिर गया, ऐसे होता है मिल गई बेस्ट रमजान, एप्पल सर पे गिर गया, हाँ गिरेगा नहीं, जिंदगी निकल जाएगी। एक भी एप्पल जिंदगी पे गिरा है आज तक? हाँ कोई बड़ा बताएगा? हाँ शेख आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं आपके सर पे अभी तक कोई एप्पल गिरा है? हाँ नहीं गिरा, मेरे भी सर पे नहीं गिरा है। ऐसे ही होता है लाइफ, रियल लाइफ में ऐसे होता है कि लाइफ निकल जाती, कभी एप्पल सर पे नहीं गिरता है, समझ लो। किसके सर पे गिरा था बोलते हैं? न्यूटन के सर पे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग सफर में जाते हैं तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। Keep it up, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। अभी रमजान स्टार्ट होने वाली है, सब बच्चे ध्यान से सुनो और बैठ के 5 गोल सेट करेंगे इंशाल्लाह। स्मार्ट गोल, स्मार्ट, हाँ मतलब स्पेसिफिक, ऐसे नहीं मैं कुछ तो करूंगा रमजान में, कुछ तो करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या करेंगे आप? अच्छा ये मैंने कुछ गोल्स की लिस्ट बनाई है यहाँ पे, हाँ एक अच्छे गोल्स है कुछ, इंशाल्लाह आप लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है माय डियर चिल्ड्रन। और जो गोल सेट करो उसके ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस, गोल को यानी कि मालूम होना चाहिए, डिटर्मिनेशन रखना है, डिटर्मिनेशन कि हासिल करूंगा मैं इंशाल्लाह, हाँ। डोंट पुट योरसेल्फ डाउन, पुट योरसेल्फ डाउन का मतलब डोंट पुट योरसेल्फ डाउन एंड डोंट अलाउ एनीवन टू डिस्करेज यू। बोले बहुत गोल सेट कर रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई ऐसा बोलेगा तो मानोगे? हाँ अपने आप के बारे में सोचेंगे कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? किसने बोला नहीं होगा? भाई एक टाइम होता है ना बच्चे लोग, याद रखो, एक टाइम होता है ना, टर्निंग पॉइंट होता है। एक टाइम होता है ना जब आदमी बोलता है आई विल डू दिस इंशाल्लाह एंड आई विल डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई विल डू इट, समझे बच्चे लोग? यानी कि करके रहेंगे, ओके इंशाल्लाह। इस रमजान में आउटस्टैंडिंग रमजान हासिल करना, ठीक है। आस्क फॉर अल्लाह's हेल्प। बड़े गोल बनाओ तो छोटे छोटे में डिवाइड कर दो। कुरान याद करना है, तुमने गोल सेट किया कि मैं इतना इतना याद करूंगा, मॉर्निंग में इतना, दोपहर में इतना, इवनिंग में इतना, जो भी हो। और अपने आप को चेक करो, चेक करो, चेक करो एंड विजुअलाइज द एंड रिजल्ट। विजुअलाइज एंड रिजल्ट का मतलब इमेजिन करो कि जैसे तुमने सेट किया गोल कि मैं रमजान में इंशाल्लाह 1 जुज़ कुरान का लर्न करूंगा, मैं इस रमजान में कुरान मीनिंग के साथ पढ़ूंगा, मैं इस्लामिक लेक्चर सुनूंगा, मैं तरावी पढ़ूंगा, ऐसे गोल सेट किया आपने। अब विजुअलाइज करो कि आपने कर लिए, विजुअलाइज करो कि आप कर लिए इंशाल्लाह, ये सोच के जाओ। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कभी फेल हो जाओ तो फिर से ट्राई, हारना नहीं, डोंट गिव अप। ये कुछ बातें थी, इट वॉज वंडरफुल शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। आप सब को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको एक बेहतरीन रमजान अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। हाँ अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह की नेमत मांगते हैं। डोंट फॉरगेट हम लोग कमजोर हैं, हम लोग गिर भी सकते हैं, हम लोग फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा रब ताकत वाला है, हम उस पर डिपेंड होते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। अच्छा इरादा सेट करो बच्चे लोग, अच्छा इरादा सेट करो एंड स्टिक टू इट इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ आई एंड ओवर हियर। वी आस्क अल्लाह टू हेल्प ऑल ऑफ अस। बच्चे लोग असल सक्सेस ये होगा ना, असल सक्सेस क्या है? जन्नत। असल सक्सेस क्या है? कुछ और सक्सेस नहीं है, सब धोखा है, बाकी असल सक्सेस जन्नत है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको उनमें से बनाए जो जन्नत वाले लोगों में से। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।